In this video, we'll see about psychiatric rehabilitation. So rehabilitation हमने वर्ड सुना ही है. रिहेबिलिटेशन आपके क्रॉनिकल पेशेंट जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. उनकी जो फंक्शनिंग है उसको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल तक आप इनेबल करते हैं. तो साइकियाट्रिक पेशेंट के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो साइकियाट्रिक रिहेबिलिटेशन उसको बोलेंगे. सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन. The help of rehabilitation, psychiatric nurse attempt to provide community best possible community role. ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि जो इंडिविजुअल है अपनी एक्टिविटीज़ को मैक्सिमम रेंज तक परफॉर्म कर सके, अचीव कर सके, इंटरेस्ट को अचीव कर सके और जो चीज़ें वो कर सकता है फॉर ऑफ विच ही इज़ केपेबल ऑफ, उन सबको अचीव कर सके. दैट इज़ रिहेबिलिटेशन. एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मैक्सवेल जोन्स in 1952. Next we'll see disorders in which we can provide rehabilitations are chronic schizophrenia, chronic organic mental disorders, mental retardation and alcohol and drug dependence. So what are the needs of rehabilitation, especially for mentally ill patients? Disorders like schizophrenia, bipolar disorder and substance abuse, there is a proportion of persons who don't fully recover and have limitations in their functioning resulting in disability. So इस तरीके के disorders में पेशेंट की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, वो पेशेंट फुली रिकवर नहीं कर पाता है, लिमिटेशंस हो जाती हैं. तो उन केसेस में रिहेबिलिटेशन इज नीडेड. नेक्स्ट इज due to scarcity of services in India, large number of severely ill patients are not under the treatment. This causes more disability, where there is associated disability along with the symptoms of illness. The disability improvement requires rehabilitation. So there are scarcity in health services in India, especially to the psychiatric. So the severely ill patients are not able to get the treatment, and their illness becomes chronic. And they become disabled. So type of patient develop other symptoms or other disability with the symptoms of illness. That's why they require rehabilitation, and it is important for them. Next we'll discuss principles of rehabilitation. Increasing independence. Increasing independence would be the first in the rehabilitation process. आप कभी भी रिहेबिलिटेट करवा रहे हैं, पहले आपको किस चीज़ पे फोकस करना है कि जो इंडिविजुअल है जिसमें डिसेबिलिटी है, जो आपका मेंटली इल पर्सन है, उसकी आप डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी में चेंज करें. नेक्स्ट इज सेकेंड प्रिंसिपल इज प्राइमरी फोकस और प्राइमरी गोल is on improvement of capabilities and competence of patient with psychiatric problems. So जब भी आपका पेशेंट आ रहा है रिहेबिलिटेशन के लिए, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी कॉम्पिटेंस है, उनको इम्प्रूव करने पे. नेक्स्ट इज मैक्सिमम यूज ऑफ रेसिडुअल कैपेसिटीज. सो इट मस्ट बी आवर फोकस दैट जो उसकी रेसिडुअल कैपेसिटी है, मतलब जितना वो अब कर सकता है उस डिसेबिलिटी के बाद, उसको उसका मैक्सिमम यूज करना है. Active participation. So patient's active participation is very essential. If patient is not participating actively, then rehabilitation process or rehabilitation will not be successful. So it is very important patient should participate actively. Last principle is skill development, therapeutic environment are fundamental interventions for a successful rehabilitation process. So if you want the rehabilitation process to be a success, so there should be skill development. The focus should be on skill development and providing therapeutic environment. These two things helps, or these are fundamental parts for the successful rehabilitation process. So these 5 are the principles of rehabilitation. Next we'll see approaches. So the approaches are, first is psychoeducation, second is working with families, third is group therapy, and the fourth one is social skills. Starting with the psychoeducation. In this, as we can see, psychoeducation, there are integration of 2 words. So here we are providing education related to the mental health as the word psycho is used. So आप पेशेंट को उसके इलनेस के रिगार्डिंग उसको एजुकेट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, उसके साथ डिस्कस किया जा सकता है. नेक्स्ट इज वर्किंग विद फैमिलीज.
Here we can encourage the family members to involve in the treatment and rehabilitation of the patient. आप पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में इन्वॉल्व होने के लिए इंकरेज करेंगे. ये भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ और रिहैबिलिटेशन को इफेक्टिव बनाता है. नेक्स्ट इज ग्रुप थेरेपी. तो ग्रुप थेरेपी में आप एक दूसरे से इंटरेक्शन कराते हैं ग्रुप में, तो people or the patients who are coming for rehabilitation get the opportunity to interact with others, to share their perception, to share their views, ideas, and problem solving ability they develop with such type of discussion और therapies. ग्रुप थेरेपी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनके कॉन्टैक्ट भी बढ़ते हैं, इंटरेक्ट होता है, व्यूज वो शेयर करते हैं, अपने परसेप्शन दूसरों लोगों के साथ शेयर करते हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या उनकी लाइफ में हुआ, वो सब वो शेयर करते हैं. और जब ग्रुप में या फिर वो साथ में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बनती है, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन बताना. नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स. सो हियर the teaching regarding specific living skills are provided. आप उनको सोशल स्किल्स, जो कि लिविंग स्किल्स, आप स्पेसिफिक लिविंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप उससे रिलेटेड आप उन्हें टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, सो दैट पेशेंट कैन सर्वाइव. सो आप उसके सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए, सर्वाइवल इम्प्रूव होगा ऑटोमेटिकली, जो उनकी मैक्सिमम रेंज ऑफ एबिलिटी है वो भी अचीव होगी. तो आप उनको क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई सोशल स्किल जो भी उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो वो उन्हें सिखाते हैं ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके. सो दीज आर 4 अप्रोचेस दैट वी कैन यूज इन साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन. नेक्स्ट वील सी रिहैबिलिटेशन टीम. Rehabilitation team includes psychiatrist, clinical psychologist, psychiatric social worker, psychiatric nurse, occupational therapist, recreational therapist, counselor, other mental health paraprofessionals. There are few steps in a psychiatric rehabilitation process. इन फर्स्ट स्टेज रिडक्शन इन इम्पेयरमेंट्स. पेशेंट के जितने भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या कोई भी इम्पेयरमेंट है जो कि उसकी सोशल एंड वोकेशनल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, उनका रिडक्शन है एंड उन सिम्टम्स को एलिमिनेट करना. इन इम्पेयरमेंट्स को, जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या बाकी के जो सिम्टम्स हैं, उनको एलिमिनेट या कम करने के लिए आप ज़्यादातर साइकोट्रोपिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्टेज में रेमेडिएशन ऑफ डिसेबिलिटीज थ्रू स्किल ट्रेनिंग. एक पेशेंट जो कि डिसेबल हो चुका है, उसकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट उसको हुआ है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो उसकी जो लाइफ केयर स्किल्स है वो इफेक्ट हो जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स इफेक्ट हो जाती है, वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट जो उसका स्किल्स है, रिक्रिएशनल स्किल्स, सारी उसकी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है. तो आप इसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल ट्रेनिंग, पेशेंट अपनी सोशल लाइफ में, फैमिली में और वोकेशनल फंक्शनिंग को अच्छे से कर पाता है. नेक्स्ट इज रेमेडिएशन डिसेबिलिटीज थ्रू सपोर्टिव इंटरवेंशंस. इन दिस केस अगर पेशेंट का जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल हैंडीकैप्ड है, उन पेशेंट्स के लिए आपको क्या करना है, उनकी जो लिविंग एनवायरनमेंट है, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें ही आपको लर्निंग स्किल्स उनको प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, ताकि वो अपनी लाइफ में, अपने फैमिली के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फंक्शनिंग को एक्सपेक्टेड लेवल तक या फिर एक अच्छे लेवल तक परफॉर्म कर सके. सो दैट इज अंडर द रेमेडिएटिंग डिसेबिलिटीज थ्रू सपोर्टिव इंटरवेंशंस. यहाँ पे आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा. यहाँ पे आप उनकी स्किल्स, सेंसेस के थ्रू जो स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को आप इम्प्रूव कर रहे हैं. यहाँ पे अगर वो डिसेबल हैं किसी भी सेंस से या किसी भी तरीके से, तो आप क्या कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्टिव इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो यहाँ पे उनको नहीं मिल पा रहा था. नेक्स्ट इज रेमेडिएशन ऑफ हैंडीकैप्स. Remediation of handicaps is done with the help of social rehabilitation interventions like community support programs. कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स के थ्रू भी जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको हेल्प मिलती है, जिससे वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अच्छे से रिहैबिलिटेट हो सकते हैं. सो दीज आर द स्टेप्स इन साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन. द फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट. So it includes
इन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के सिम्टम्स को असेस किया जाता है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, मोटिवेशन क्या है पर्सन का, स्ट्रेंथ क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, सेल्फ स्टीम क्या है, एंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड ड्रग कंप्लायंस। इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ फैमिली, कंपोनेंट्स इसमें आपके फैमिली असेसमेंट में आते हैं, जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर चेक करना, स्टेजेस डेवलपमेंट की चेक करना, रोल्स क्या क्या है फैमिली मेंबर्स के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्म्स, वैल्यू क्या है फैमिली की। देन फैमिली एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेंटली इल पर्सन, किस तरीके का इमोशनल क्लाइमेट है फैमिली में, सोशल सपोर्ट फैमिली में अवेलेबल है या नहीं, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या क्या है फैमिली के, और फैमिली के अंडरस्टैंडिंग क्या है, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उसके लिए फैमिली के अंडरस्टैंडिंग क्या है और किस तरीके से केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ कम्युनिटी। जितनी भी एजेंसीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनका असेसमेंट करना, उनका मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड है और मेंटली इल पेशेंट के रिगार्डिंग क्या एटीट्यूड है। नेक्स्ट विल सी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। Focuses on fostering independence by maximizing personal strength. So main focus आप प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं एज ए नर्स? आपका फोकस है कि जो पेशेंट है उसकी इंडिपेंडेंस को फोस्टर करना, बढ़ाना, उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ को बढ़ा के। तो इसमें जो पेशेंट और नर्स है वो साथ में काम करते हैं ताकि वो इन प्रॉब्लम्स या जो भी एरियाज है जहाँ पे काम करना है उस पर साथ में फंक्शन या साथ में वर्कआउट साथ में काम कर सकें। तो इसमें इंटरवेंशंस में आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, इंडिविजुअल इंटरवेंशन, फैमिली इंटरवेंशन। इंडिविजुअल इंटरवेंशन में हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन आता है, जो कि आप इनपेशेंट रिहैबिलिटेशन भी जिसको बोल सकते हैं। इसमें रिक्रिएशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग इन बेसिक लिविंग स्किल्स आर प्रोवाइडेड। इंडिविजुअल इंटरवेंशन में हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन एंड कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन। हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन में इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। पेशेंट को रिक्रिएशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड बेसिक लिविंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। देन इन कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन, कम्युनिटी प्रोवाइडिंग केयर इन कम्युनिटी सेटिंग, जैसे घर पे, होम या रेजिडेंशियल केयर सेटिंग या फोस्टर होम्स केयर। कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन में वन मोर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस the school teachers, village leaders are also included, and paraprofessionals also involved to provide the health education. Family interventions. In family intervention, health education is provided to the family members. Health education में आप डिजीज प्रोसेस कैसे होती है, कितने अवेलेबल रिसोर्सेज है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के रिगार्डिंग आप हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट कर सकते हैं regarding the proper care of the patient, and group therapy and support to the family members through self-help groups. Last is, in this stage we check whatever assessment we have done, whether it was good or not, whether it was effective or not, our planning was effective or not, the intervention we have done was effective, the intervention we have done was effective or not. So this is about the role of nurse in rehabilitation. We have completed the topic psychiatric rehabilitation. Thank you.